Right, screen is visible to all of you? Yes, sir. Okay. सर थोड़ा ब्लर है. हाँ रुको, ठीक हो जाएगा. सो हम लोग जो है विस्कोसिटी कर रहे थे, स्टार्ट किया था. और उसमें जो है आई हैड टोल्ड यू व्हाट विस्कोसिटी इज, राइट? and it arises due to relative motion between two adjacent layers of liquid, and it's a kind of friction. It depends on the cross sectional area, or rather the area in contact. And the other thing is viscosity will arise not only between layers of liquid but also between a liquid and a solid surface. So if the liquid is trying to flow and it is in contact with the solid surface, then you will find that there is a kind of a friction there, right? So जो फोर्स है, विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला है वो मैंने लास्ट टाइम लिखा था, बट वहीं से स्टार्ट करते हैं. So viscous force is given by negative sign, but that is not so important. Then there is a coefficient of viscosity eta, then the area that is in contact, and then what is called the velocity gradient. ठीक है, this is called the velocity gradient. This is your coefficient of viscosity. And this is your area in contact. ठीक है. नहीं चिन्मय, if we introduce in viscosity, we don't inherently introduce turbulence. You will see in a while that in fact the more viscous the liquid is, the less turbulent its flow is. Viscosity actually helps with laminarity. More viscous liquids have more laminar flow. Less viscous liquids have more turbulent flow. So a good example of a fluid which has low viscosity is a gas. Gases have low viscosity. And so generally gases का flow जो होता है it's usually turbulent होता है. Gases का flow जो है laminar नहीं होता है mostly. जितना ज्यादा viscous होगा liquid fluid, उतना ज्यादा उसका flow जो है laminar होगा. जितना ज्यादा विस्कस होगा मतलब फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा, तो उससे ज्यादा वो फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा. नहीं, फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा उससे, लेकिन क्या है कि तुम देख सकते हो कि जो फोर्स लग रही है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल है. और एक सेंस में वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, इज द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटीज ऑफ टू एडजेसेंट लेयर्स. कि दो लेयर स्लाइड कर रही हैं, जैसे मान लो मल्टीपल लेयर्स हैं, ये लिक्विड है मान लो और ये एक सॉलिड है. ठीक है, सो दिस इज सम लिक्विड फ्लोइंग ओवर अ सॉलिड सरफेस. What happens is if you plot the velocities, you will find that the liquid that is in contact with the solid is basically at rest. तो जो लास्ट लेयर है वो बेसिकली रेस्ट पर होगा. यहाँ मैं लिख देता हूं, लेयर ऑफ फ्लूइड in contact with solid has zero velocity relative to solid, right? Relative to solid मतलब जो भी solid का velocity है वही उस layer का velocity है. solid के respect में वो rest पर है. लेकिन जैसे जैसे उससे दूर जाते हैं, free layers की तरफ जाते हैं, तो speed बढ़ता है, तो you get some kind of a profile. So you have like this, then you have this, then you have this, and the layer that is furthest away from any solid is moving the fastest. जो एकदम freest layer है, जिसको कोई drag नहीं आ रही है, जिसको कोई viscous force नहीं लग रही है,
उसको केवल नीचे वाले लेयर से विस्कस फोर्स लग रही होगी, तो वो जो लेयर है वो फास्टेस्ट जा रहा होता है। तो इस तरीके से एक वेलोसिटी का प्रोफाइल बनता है। दिस इज कॉल्ड अ वेलोसिटी प्रोफाइल। बेसिकली द फंक्शन दैट टेल्स यू द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ z इज कॉल्ड द वेलोसिटी प्रोफाइल। सर लीनियर होगा ना? नहीं, अब लीनियर होगा या नहीं होगा वो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। वो डिपेंड करता है कि ज्योमेट्री कैसी है, फिजिकल प्रॉब्लम का ज्योमेट्री क्या है। लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, बट मेरा पॉइंट ये है कि एक प्रोफाइल बनेगी, फंक्शन है। whether it's a straight line here, whether it's a quadratic parabola or something else, that depends on the overall geometry of the situation. But the point is that there is a profile, meaning to say that there is a variation of speed with distance from the solid surface or with depth. And so therefore dv by dz kind of tells you कि अगर मैं इस में अगर dz नीचे गया तो मेरा स्पीड कितना से चेंज हो गया होगा, right? dv by dz is the slope of this function. This is the z direction, this is the v direction, right? सर z है क्या? Z is just the direction perpendicular to the flow. तो सर मैसेजेस किस पे भेजना है? मैसेज तुम लोग भेजोगे होस्ट पे। तो Z जो है, Z is simply the direction that is perpendicular to the flow, correct? तो फ्लो जब चल रहा होता है, समझा नहीं कि सबका सब वेलोसिटी अलग क्यों होगा? सब वेलोसिटी इसलिए अलग होगा क्योंकि जो तुम्हारे पास लेयर है, बेसिकली कोई भी फ्रिक्शन, चाहे वो विस्कोसिटी हो, चाहे वो कोई सा भी फ्रिक्शन हो, वो क्या करता है, वो रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा होता है। और रिलेटिव मोशन अगर एकदम खत्म हो गई होती है तो फिर वो विस्कोसिटी और फ्रिक्शन भी खत्म हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन या विस्कोसिटी, राइट? तो जो लास्ट लेयर है, बॉटम मोस्ट लेयर है, जो सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, उस पे विस्कोसिटी नीचे से लगना तभी बंद होगा जब उसका सॉलिड सरफेस के रिलेटिव मोशन बंद हो जाएगा। तो एक सेंस में अगर तुम माइक्रोस्कोपिक डिटेल में देखोगे तो ये सरफेस जो है परफेक्टली स्मूथ तो होगा नहीं, इसमें इरेगुलरिटीज होंगी, और एक सेंस में फ्लूइड का एक लेयर उन इरेगुलरिटीज में ही लॉक हो गया होगा। so that layer will have no speed. The layer above it will have an easier time moving because it is not trapped in with some solid, so that will flow with some speed. The layer above it will move even faster because उसके नीचे का layer move कर रहा है, तो उसके relative वो थोड़ा सा और move कर पा रहा है। समझा। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम फ्री सरफेस की तरफ जाएंगे हमारा वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। एंड सो द पॉइंट दैट ऊपर फ्री, कौन सा फ्री सरफेस? हाँ, ये सरफेस को मैं फ्री सरफेस बोल रहा हूँ। फ्री सरफेस इन द सेंस व्हिच इज नॉट कंस्ट्रेन्ड बाय सम बाय बीइंग इन कांटेक्ट विद सम सरफेस। सर अगर वहां पे सरफेस होगा तो ऐसा नहीं होगा ना? करेक्ट। अगर मान लो, तुम खुद ही गेस करो, अगर यहाँ पे भी एक सरफेस हुआ, बेसिकली मान लो अगर ये पाइप हुई, तो उसके अंदर V सबसे फास्ट किधर होगा? बीच में, इन द सेंटर। इन द सेंटर, द सेंटर मोस्ट लेयर। नहीं, ऊपर नहीं, अगर पूरा बंद है, ऊपर भी सॉलिड है, ऊपर भी सॉलिड सरफेस है, बेसिकली ऊपर और नीचे नहीं है, ऑल अराउंड है, ये सिलिंड्रिकल पाइप में से फ्लो कर रहा है। तो पाइप के वॉल्स के साथ जो लिक्विड कांटेक्ट होगी वो रेस्ट पर होगी। फिर तो तुम इमेजिन कर सकते हो पूरा जो लिक्विड है तुम्हारा वो बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ कोएक्सियल सिलिंड्रिकल शेल्स ऑफ डिक्रीजिंग रेडियाई। तुम लोग समझ रहे हो कि अगर मेरा एक विस्कस लिक्विड एक पाइप के थ्रू फ्लो करने की कोशिश कर रहा है, ये हम डिटेल में एनालाइज करेंगे इस सिचुएशन को मैथमेटिकली, लेकिन अगर वो पाइप में से फ्लो करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें फास्टेस्ट वेलोसिटी एक्सिस पे होगी, फिर उससे स्लोअर वेलोसिटी जो है उसके नेक्स्ट होगी, और नेक्स्ट का मतलब केवल दो तरफ नहीं है, ऑल अराउंड है, तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ सिलेंड्रिकल रीजन है। फिर एक और सिलेंड्रिकल रीजन है जो उससे स्लोअर चल रहा है, फिर एक और सिलेंड्रिकल रीजन है जो उससे स्लोअर चल रहा है, फिर एक और सिलेंड्रिकल रीजन है जो उससे स्लोअर चल रहा है, और वो सिलेंड्रिकल रीजन लिक्विड का जो सॉलिड के साथ कांटेक्ट में है वो एक्चुअली नहीं चल रहा है, वो रेस्ट पर है। डू यू गाइस फॉलो व्हाट आई एम सेइंग? तो ऑफ कोर्स व्हाट ये तो एक इंटीग्रल वाला तरीका है इसको सिलिंड्रिकल शेल्स की तरह देखने का। इन एक्चुअल फैक्ट, सिंस देयर इज एन इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ सच शेल्स and they are all infinitesimally thick, what you will end up having is a connected surface, so the viscous liquid will come out with a shape like this. तुम लोग समझ रहे हो मैं जो बना रहा हूं अभी?
Yes, ठीक है। sir. कोई विस्कस लिक्विड जब किसी सिलेंड्रिकल पाइप में से निकलता है तो उसमें सेंटर में बल्ज होता है, वो फ्लैट फ्रंट के साथ नहीं निकलता है। ऐसा नहीं निकलता है कि एक पाइप है, अगर पाइप होता और उसमें आइडियल लिक्विड होता जिसमें विस्कोसिटी नहीं होती तो वो ऐसे निकलता। डू यू गाइस अंडरस्टैंड द डिफरेंस? लेकिन हमारा क्योंकि विस्कस लिक्विड है जिसकी टेंडेंसी है वॉल से स्टिक करने की, तो वो ऐसे निकलेगा। मेक सेंस? जैसे तुम ट्यूब में से कोई मेडिसिन निकालते हो, इफ यू हैव टू पुट लाइक अ cold cream or whatever or toothpaste, the way it comes out is a viscous flow because those creams and those fluids are highly viscous, and that is also a very laminar flow, right? वो बहुत laminar flow होता है। और अगेन मैं यही एक्सप्लेन कर रहा था मेन पॉइंट की लैमिनारिटी इज एडेड बाय विस्कोसिटी। तो उसमें ये डाउट पूछ रहा था कि ज्यादा विस्कस होगा तो फिर ज्यादा लैमिनार नहीं होना चाहिए, कम लैमिनार होना चाहिए। हाँ चिन्मय, वो हम डिस्कस करेंगे इसका मैथमेटिकल शेप। इट विल टर्न आउट टू बी अ पैराबोला, इनफैक्ट तुम्हारा गेस सही है। बट इन एनी केस माय पॉइंट हियर इज कि लैमिनार विस्कोसिटी होने से टर्बुलेंस नहीं प्रोड्यूस होता है बल्कि लैमिनारिटी प्रोड्यूस होती है। अब वो क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि अगर टर्बुलेंस है, सॉरी अगर विस्कोसिटी है, ड्रैग है, तो क्या उससे टर्बुलेंस नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा? बट एक्चुअली ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो ऑब्स्ट्रक्टिव फोर्स है, वो एक्चुअली वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल है। और एक सेंस में वेलोसिटी ग्रेडियंट को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इस z डायरेक्शन में अगर मैं इनफाइनाइटेसिमली मूव करूं dz, तो मेरा स्पीड dv से कितना चेंज हो जाएगा, यानी हाउ फास्ट एम आई गोइंग विद रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट लेयर, द लेयर एडजेसेंट। एंड सो द फास्टर आई एम ट्राइंग टू गो relative to the layer adjacent to me, the more drag I will experience, and the drag will tend to retard my motion and therefore bring it in line with the layer that is adjacent to me, and this will happen between every adjacent layers. So viscosity will actually have a kind of a smoothing effect on the flow. It will stop layers that are close together from moving very differently from each other. Do you guys understand what I'm saying? Yes, sir. तो वो सब साथ में ही जाते हैं सॉर्ट ऑफ। विस्कोसिटी सबको पकड़ के साथ में ले जाता है, तो कोई फास्ट जाने की कोशिश कर रहा है तो वो सबको अपने साथ ड्रैग करता हुआ फास्ट ले जाता है सॉर्ट ऑफ, और अगर कोई बहुत स्लो होने की कोशिश कर रहा है तो वो सबको स्लो करने की कोशिश करता है, तो ओवरऑल फ्लो में एक शेप आ जाता है। अगर लेयर्स के बीच में कोई भी विस्कोसिटी नहीं है, हर लेयर इंडिपेंडेंट है टू मूव, तो टर्बुलेंस क्रिएट होगा बिकॉज सबके अलग अलग कंडीशंस होंगे। जो कॉन्टैक्ट में होगा वो रुका हुआ रहेगा, बीच में से कोई तेज निकलेगा, कोई उधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। सो इफ यू थिंक ऑफ समथिंग लाइक smoke being a gas, and gases usually have less viscosity than liquids, and you can see that smoke is a case where you hardly have laminar flow. It is very nearly impossible to achieve laminarity with smoke. What you have is turbulence eventually, right? So the more viscous the liquid is or the fluid is, the more laminarity you get. Okay. Also we will discuss later and we will find out ki the more dense the liquid is, density also has an effect, and density has a degrading effect on laminarity. So the denser the liquid, the less laminar it can be. So what you want for good laminarity is high viscosity and low density. You want it to be very viscous, but you want it to be light. Light क्यों? क्योंकि viscosity ज्यादा है तो वो आजू बाजू पे फोर्स ज्यादा लगाएगा, लेकिन अगर हैवी लिक्विड हुआ यानी डेंस लिक्विड हुआ तो उस फोर्स का उतना आउटकम नहीं होगा। फोर्स का मतलब F=ma, अगर तुम लगा रहे हो किसी लेयर पे, तो जितना मैसिव लेयर है उतना उसका एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, तो उसका मोशन जो है बाकियों के साथ अलाइन नहीं हो पाएगा उतना जल्दी। इट विल बी स्लो टू रिस्पॉन्ड टू इट्स नेबरहुड। डू यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर? Yes. So if you want laminar flow, you want your liquid to have Least viscosity. नहीं most viscosity, least density. correct.
Viscosity should be high. The liquid should tend to stick to itself so that it goes as a composite object. But it should be light enough that the viscous force can actually move layers quickly enough. Heavy liquids which are less viscous usually are turbulent. They have turbulent flow. Highly viscous liquids with low density have very. So a good example of this is toothpaste. Toothpaste is a liquid or a fluid which has high viscosity. और जितना viscosity ज्यादा होता है उतना flow ही कम होता है liquid. So it will not simply pour out and spread. The more viscous it is, the less likely it is to sort of separate and flow. You can, एक sense में limiting condition तुम imagine कर सकते हो कि infinite viscosity would be being a solid. It's not strictly correct, but you can kind of imagine that the more you go towards higher viscosity, the more towards solid you are going. The more towards less viscosity, the more towards gas you are going. So if you consider gases, liquids, and solids on a spectrum instead of being distinct states of matter, and then you have a controller on viscosity, if you increase viscosity too much, you become more like a solid, because different layers will hardly move independent of each other. And once you go to complete solid, they will all go together, right? So you want high viscosity. And so I was giving the example of toothpaste. Toothpaste is a highly viscous liquid. That's why it doesn't flow. When you bring it out of the tube, it will stay on your toothbrush. It will not simply just go around and spread out. Honey तुम pour करोगे तो honey रुक नहीं सकता, उस पे पानी बिल्कुल नहीं रुक सकता. लेकिन toothpaste will come out, and the way toothpaste comes out is itself a very laminar flow, right? वो जो ads में दिखाते हैं वो लोग कि toothpaste जो है अपना tube में से निकलता है, and then they will make like a funky looking graphic of toothpaste coming out, and even when it comes out and sits on the toothbrush, it kind of maintains that shape. And then they will make lines even to sort of emphasize the fact that it's a very laminar flow, right? So that Excuse is me, your sir. So I'm having trouble accepting that viscosity and density are sort of independent of each other, because when you said that we increase viscosity, it will tend towards a solid, to behave like a solid. At the same time, its density would be increasing, right, as a solid? No, not necessarily. I mean, it so happens that mostly things that are highly viscous are also dense, but it is not directly correlated to each other. There are solids which are of course infinitely viscous because they are solids, but they are not very dense. You can have very light solids like foam and sponge and all. They are still very viscous. If you make a cutout out of foam, it will maintain its shape. It will not simply flow away. So that's highly viscous, but it's also it hardly has any density because most of it is empty space. Toothpaste also is an example of a low density material which has high viscosity because it's mostly empty space. But you can also have liquids which have high density. I mean to say that they are heavier liquids, but they are not very viscous. So there are materials like that. I can't think of an example right now, but if you Google, you can find out that there are. What viscosity has to do with the electrical forces between the molecules. Density has to do with how massive each molecule is by itself. To an extent, high viscosity also means the molecules tend to stay together, and therefore you find more molecules per unit volume. They don't tend to spread apart, which also has an effect on density. So they are kind of, I mean, indirectly they're kind of related. But there is also a factor which is that the density is separately controlled by the mass of each molecule itself. And so over there you can have a variation. With a given amount of electrical attraction between the molecules, you can have everything from light molecules to heavy molecules. Right? Understood, sir. Thank you. Okay. So this is basically the ground story on viscosity, that it is this kind of a force. It is this formula. It works like this. This is an important fact to keep in mind. The layer of fluid in contact with a solid or a surface has zero velocity relative to solid. And viscosity aids laminarity. For laminarity, you want high viscosity and low density. Correct? Guys, chat host pe bhejo. Somebody sending chat on co-host. I can't read it. Send it to host. So now, but we'll be taking one very important assumption here. We are only studying a kind of flow.
and in that flow there will be a certain feature which will help the story a lot. Not only are we studying laminar flow, we are studying flow where the acceleration of any given subpart of the fluid is zero. So if you have viscous flow and if you pick out a small part of the fluid in the thing and you say, okay, what is the acceleration of this subpart? It must be zero. ऐसा नहीं कहने का मतलब है कि केवल नेचर में ऐसे ही फ्लो होते हैं जिनमें एक्सेलरेशन जीरो होती है. हम केवल अपने आप को लिमिट कर रहे हैं टू स्टडीइंग ओनली द काइंड ऑफ फ्लो वेयर आई एम गारंटीड that the liquid is not accelerated. In the flow, there is no acceleration. You will see that this will actually simplify the analysis considerably. Of course, it will limit us to a very a sort of a subset of the entire phenomena. We are not able to deal with more complicated flows in which there are accelerations between different parts. But the ones that we can deal with, we are able to deal with properly and very simply. The equations become quite simple. ठीक है. तो अब अगर किसी भी सब पार्ट का जो है नेट एक्सेलरेशन जीरो है तो उस पे नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए, राइट. दिस इंप्लाइज द नेट फोर्स ऑन द सब पार्ट is zero. So now if you consider, let's say a flow where, let's say, this is a solid surface and the flow is in this direction, correct? You imagine that this is an infinite plane, so that everybody has a velocity which is towards the right side, let's say, but of course there is a profile, there is a velocity profile, there is a gradient, correct? So now if you consider any one layer in the middle, if you consider this layer, and these are all infinite in extent, right? Everything is infinite in all directions. So then, ignoring gravity, where will be forces acting on this layer and in what directions? Keep in mind that as you go up, the speed of the layer is higher and higher and higher. So this layer is moving faster than the layer below it, but slower than the layer above it. तो इस पे कहाँ फोर्स लग रहे होंगे? एक तो ऊपर वाले सरफेस पे विस्कस फोर्स लग रहा होगा और एक नीचे वाले सरफेस पे विस्कस फोर्स लग रहा होगा, लाइक दिस. तो ऊपर वाले सरफेस पे जो विस्कस फोर्स इसको लग रही होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? लेट्स से द फ्लो इज टुवर्ड्स द राइट. इस पे फोर्सेस दिखा रहे हैं हम, ना कि ये जो दूसरों पे लगा रहा है. तो इस पे ऊपर वाले लेयर से जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा वो आगे की तरफ होगा, क्योंकि आगे वाला लेयर इससे फास्टर है, तो वो इसको एक सेंस में अपने साथ ले जाने का कोशिश कर रहा है बाय यूजिंग द विस्कस फोर्स. या यू कुड से कि वो इससे फास्टर जा रहा है तो ये उसको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, और नीचे वाला लेयर इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा. डू यू एग्री? हाँ चिन्मय, यू कैन कंसिडर दिस एज अ स्टैक ऑफ ब्लॉक्स. वो जो हम स्टैक ऑफ ब्लॉक्स न्यूटन्स लॉज में पढ़ते थे उसी टाइप का अरेंजमेंट, राइट? तो ऊपर वाला जो लेयर इसको फोर्स लगा रहा है और नीचे वाला जो फोर्स लगा रहा है इसको, वो दोनों इक्वल होने चाहिए बाय दिस कंडीशन. Do you all follow? But also
नीचे वाला लेयर अगर तुम इसके कंसिडर करो कि क्योंकि लेयर्स हैं ये, और मैं यहाँ पे इनको थोड़ा स्टैगर्ड दिखा रहा हूँ एक सेंस में वेलोसिटी का आइडिया देने के लिए। तो अगर किसी भी लेयर को उसके आगे वाला लेयर आगे फोर्स लगा रहा है, उसके ऊपर वाला लेयर आगे फोर्स लगा रहा है और उसके नीचे वाला लेयर पीछे फोर्स लगा रहा है, तो फिर वो अपने नीचे वाले लेयर को आगे फोर्स लगा रहा होगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। यस। और उस अपने लेयर के एक्सेलरेशन 0 होने के लिए उस पे फिर पीछे वाला लेयर एफ लगा रहा होगा, लेकिन बाय थर्ड लॉ वो फिर अपने नीचे वाले लेयर को आगे एफ लगा रहा होगा। It's like saying that if I have a stack of blocks sitting on top of each other and they are all moving but with constant velocity, none of the blocks is accelerated, then can I conclude directly that the friction between all contacts is the same friction throughout? Yes, sir. यही कंक्लूजन हमारा यहाँ भी निकल रहा है। Sir, but for a particular layer, right? नहीं, throughout. इसको आगे F लग रहा है, इसको अपने इक्विलिब्रियम के लिए पीछे F लगना चाहिए, और न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये नीचे वाले पर आगे F लगा रहा होगा। Yes, sir. But sir, फिर हम net force 0 assume कर रहे हैं, right? नेट फोर्स तो 0 है ही, ऑफ कोर्स। नेट ठीक फोर्स अल्टीमेटली नेट फोर्स इस सिस्टम पे आएगी उसके कारण जो ये फ्लो को चला रहा होगा। तो अब ये फ्लो खुद से तो नहीं चल रहा होगा, विस्कस फ्लो खुद से इंटरमिनेबली नहीं चल सकता है, तो या तो ये इंक्लाइन है पूरा सिस्टम विच इज ग्रेविटी देन mg sin थीटा, Right, sir. या फिर कोई ऊपर वाले लेयर पे कोई सॉलिड रख के उसको चलाया जा रहा है कि नीचे वाला सॉलिड फिक्स्ड है और ऊपर वाला सॉलिड रखा और फिर वो ये फिक्स्ड है और वो चल रहा है, तो जब वो चलेगा तो वो लेयर को ड्रैग करके ले जाएगा उसके नीचे वाला। तो ऐसे लेयर बाय लेयर जो है सब लेयर्स चल पड़ेंगे, लेकिन वेलोसिटी का प्रोफाइल रहेगा। तो जो आदमी इसको फोर्स लगा रहा है फिर वो एक्सटर्नल फोर्स है पूरे सिस्टम पे। अल्टीमेटली एज अ होल there is no net force on the system because you are anyway saying that every layer has zero acceleration, so there is no total acceleration of the system. But the guy who puts a solid on top and tries to drag it will also have to overcome this F, क्योंकि उसको उसके नीचे वाले लेयर से पीछे की तरफ F लग रहा रहेगा। तो अगर वो इस चीज को जो भी ये सॉलिड है उसको कंटिन्यूअसली मूव करना चाहता है एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, then he must be supplying that F in the forward direction. Moving a solid on a viscous layer will require a force. It will not just go by itself. Do you all follow? Yes, sir. ठीक है। So therefore, the viscous force F is the same for all Z. ये समझ में आ गया सबको? ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। Sir, Z is downward or perpendicular to the plane of the Downward. paper? Downward, right? हाँ, okay, got it, sir. ठीक है। Yes, sir. Z जो है फ्लो के नॉर्मल डायरेक्शन में है। Z एक्चुअली क्या है कि अब ये तो तुम 2D में देख रहे हो। अब अगर मान लो कि ये ट्यूब होता है इससे, कि इसमें ऊपर भी सॉलिड होता, नीचे भी सॉलिड होता, बेसिकली ऑल अराउंड सॉलिड होता, पाइप होता है ये, तो उसमें Z केवल एक तो पहले सेंटर में तुम एक्सेस डालते V वाला, और फिर Z तुम्हारा केवल ये डायरेक्शन में नहीं होता, उधर भी होता, अब भी होता, फिर वो Z को हम R से रिप्लेस कर देते, रेडियल R, है ना। जैसे इस डायरेक्शन, इस केस में you would have the V axis pointing this way and the R axis will point in any direction. So that will tell you the velocity at that radial distance R from the center. तो यहाँ पे जो है dV by dz की जगह dV by dr हो जाएगा more appropriate. Make sense? Yes. ठीक है। तो आई होप सबको ये सारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये पूरा बेसिक फाउंडेशन है फर्दर डिस्कशन के लिए, कि जब हमने एक बार कंक्लूसिवली ये को कह दिया कि हम केवल यही फ्लो पढ़ रहे हैं, उसकी ये कंडीशन है, और वो कंडीशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ पुट टुगेदर लीड अस टू दिस कंक्लूजन दैट द विस्कस फोर्स F इज द सेम फॉर ऑल Z। ठीक है। तो अब जो है we can talk about various situations. So for example, here is the thing,
consider this case. इनफाइनाइट प्लेनर ज्योमेट्री, जो कि ये है, अब इसको हम मैथमेटिकली समझेंगे। इनफाइनाइट प्लेनर ज्योमेट्री से मेरा मतलब है कि एक इनफाइनाइट प्लेन है, ये इनफाइनाइट है इन बोथ डायमेंशंस, ठीक है। और इसके ऊपर एक दूसरा इनफाइनाइट प्लेन होगा जो चल रहा होगा एक सर्टेन स्पीड से, मान लो इस तरफ v से, ये मूविंग इनफाइनाइट प्लेन है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो है हमारा विस्कस लिक्विड भरा हुआ है, सैंडविच की तरह। मेक सेंस? तो इनफाइनाइट होने का फायदा ये है कि अब अगर तुम अपनी इक्वेशन कंसिडर करोगे, F equals to eta A dv by dz, हाँ वीडियो ब्लर हो रहा है, जस्ट एक सेकंड। ईटा ए डीवी बाई डी जेड है। जेड मैंने बोला ना, जेड ये है तुम्हारा जो फ्लो का डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सिस है वो जेड है। तो वेलोसिटी की जो प्रोफाइल है वो v एज अ फंक्शन ऑफ z होगी ना, कि यहाँ पे वेलोसिटी तुम्हारी जो अभी मैं इस केस में बताता हूँ, बट z इज सिंपली द डेप्थ, ठीक है। इन अ 2D कॉन्टेक्स्ट z इज द डेप्थ। इफ यू वांट द सिस्टम हियर, एक्सिस हियर, then this is your z direction and this is your v direction for this situation, ठीक है। तो अब जो है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि f इज द सेम थ्रू आउट, राइट। तो f कांस्टेंट है, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ z. Eta is anyway a property of the material, so it's a constant. And since in an infinite planar geometry, the area that is in contact between the layers, area is what? The area of contact between two adjacent layers. So in a geometry of infinite planes, for any layer, its top area and its bottom area are the same because it's a straight plane, right? Yes. और उसका ऊपर का एरिया उसका नीचे का एरिया के बराबर है, और उसका नीचे का एरिया नीचे वाले के ऊपर के एरिया के बराबर है, और फिर उस लेयर का अपना ऊपर का एरिया अपना नीचे एरिया के बराबर है, एंड देयरफॉर सो ऑन इन। तो बेसिकली एरिया इज नॉट चेंजिंग विद डेप्थ। द एरिया विच इज इन कॉन्टैक्ट, जिसपे विस्कस फोर्स लग रही है, वो z के साथ चेंज नहीं हो रहा है। Make sense? So therefore automatically इस situation में dv by dz is a constant, and if dv by dz is a constant, what does that mean? That v as a function of z is a linear function, और that v और z का प्लॉट का स्लोप जो है स्ट्रेट लाइन है। मतलब कि ये तुम्हारा टॉप लेयर है, ये तुम्हारा बॉटम लेयर है, और वेलोसिटी का जो प्रोफाइल है वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन प्रोफाइल है। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी है,
फिर ये वेलोसिटी है, फिर ये वेलोसिटी है, फिर ये वेलोसिटी है, फिर ये वेलोसिटी, टॉप पे v है, नीचे 0 है। तुम लोग समझ गए सिचुएशन? काफी ब्लर है। ठीक है, Done, sir. अभी दिख रहा है थोड़ा क्लियर कुछ? हाँ अभी हुआ बेटा। हाँ, थोड़ा ही ब्लर हो जाता है फिर ठीक हो जाता है। रीडेबल है तो ठीक है बस। तो कहने का मतलब यह है कि जब हमारे पास इनफाइनाइट प्लेनर ज्योमेट्री होगी तो उस केस में since layer by layer by layer the area that is in contact between any two adjacent layers is the same top to bottom, so then automatically f and eta are anyway constants, area also becomes a constant for this particular geometry. F and eta are constants for any geometry, they are not geometry dependent, they are just constants, but a is constant because of this particular planar geometry, and therefore you have dv by dz is a constant, so you have a linear profile of velocity. तो लीनियर प्रोफाइल ऑफ वेलोसिटी होने का फायदा यह है कि अब तुम्हें dv by dz की जरूरत नहीं है, डेल्टा v by delta z will do the job. So let me ask you a quick question based on this. You can replace dv by dz with simply delta v by delta z. There is no integration required, there is no calculus required, it's simply the delta of the two things. So as an example, let's say that there is a infinite surface which is flat, एंड इसमें लिक्विड है, और फिर जो है उसके ऊपर एक प्लैंक को हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, बीच में पूरे में लिक्विड भरा हुआ है, विस्कस लिक्विड है, और जो डेप्थ है लिक्विड का वो डी है। ठीक है, और इग्नोर ग्रेविटी इस प्रॉब्लम में। फाइंड द फोर्स per unit area to be applied to the plank to keep it moving at speed v. Find the force per unit area to be applied to the plank to keep it moving at speed v. आंसर होस्ट पे भेजना। इसका जो विस्कोसिटी है लिक्विड का वो ईटा है। करेक्ट है परिजात, स्नेह भी करेक्ट है। मिराज करेक्ट है, श्रेया करेक्ट है,
पिनाक करेक्ट है, प्रणव करेक्ट है, पारिन करेक्ट है, चिन्मय करेक्ट है, आइविन करेक्ट है, co-host पे मत भेजो, somebody just sent an answer to co-host, send it to host. प्रेरित करेक्ट है, क्षितिज करेक्ट है, ठीक है, हर्षित देवयानी करेक्ट है, अभिजीत करेक्ट है, वरुण सावंत करेक्ट है, प्रांजलि करेक्ट है, नहीं चिन्मय, पर यूनिट एरिया इसलिए पूछा है ना, प्लेन तो इनफाइनाइट है, टोटल फोर्स भी उसको इनफाइनाइट ही लगेगी, तो इसीलिए उसके हर यूनिट एरिया में तुम्हें फोर्स का क्या छोटा पार्ट लगाना है वो पूछ रहे हैं इसमें, बिकॉज टोटल फोर्स तो वैसे भी इनफाइनाइट ही लगेगा। एक इनफाइनाइट लेयर ऑफ सॉलिड को एक इनफाइनाइट लेयर ऑफ विस्कस लिक्विड पे स्लाइड कराने के लिए इनफाइनाइट फोर्स ही लगेगी नेचुरली। इट्स लाइक वेलक्रो ऑन वेलक्रो, राइट? तो इनफाइनाइट वेलक्रो पे इनफाइनाइट वेलक्रो को पुल करना विल रिक्वायर इनफाइनाइट फोर्स। दैट्स व्हाई यू आर बीइंग आस्क्ड फॉर पर यूनिट एरिया। हाँ चिन्मय करेक्ट है। फिर तो सिंपल है, लेट मी जस्ट टेल यू, क्योंकि इनफाइनाइट प्लेन है तो ये एक प्लेनर ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है। इसका मतलब
ठीक है, समझा? डायरेक्टली टॉप पे स्पीड डिवाइडेड बाय टोटल डेप्थ कर दो, वही वेलोसिटी प्रोफाइल, वही वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट है। तो स्लोप निकालने के लिए dv by dz करने की जरूरत नहीं है। सिद्धांत, यूनिट्स ऑफ ईटा जो है, फिगर आउट कर लो तुम। फोर्स है, डायमेंशन तो निकाल ही सकते हो। फोर्स है, एरिया है, प्रेशर हो गया, और dv by dz स्पीड व लेंथ हो गया। आई थिंक एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, कुछ वैसा होता है, बट आई एम नॉट एंटायरली श्योर, यू कैन फाइंड आउट। वैसे उस सब को फिर कंबाइन करके यूनिट बना दिया जाता है। जैसे अब ऑब्वियसली पावर है, पावर का यूनिट है जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड को एक सेपरेट नाम वॉट दे दिया गया है। वैसे विस्कोसिटी में भी विस्कस फोर्स जो है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है, उसका यूनिट वैसे तो कुछ आ जाएगा, न्यूटन मीटर पर एरिया पर व्हाटएवर, but I think that combined together is called a poise, Poise. I'm not sure what one poise is equal to exactly. Must be 1 Newton meter whatever, one of the SI, but you can look it up. Let me check. One poise equals 0.1 kg per meter second. Poise होता है इसका यूनिट। One poise is 0.1 kg per meter second. kg मीटर पर सेकंड नहीं होगा, kg पर मीटर सेकंड होगा। ठीक है। The area we are referring to here is that ये जो मैंने ड्राइंग बनाया ना, इसको अगर तुम हाँ पर्सपेक्टिव में देखोगे तो ये प्लैंक है तुम्हारा, ये प्लैंक है, और ये नीचे का सरफेस है जिसपे वो स्लाइड कर रहा है, और यहाँ पे विस्कस लिक्विड है बीच में। तो एरिया जो है पर यूनिट एरिया, जो एरिया है वो ये है। ऑन द प्लैंक यू कुड मेक, दिस इज द पर यूनिट एरिया, क्योंकि इसके नीचे ही विस्कस ड्रैग लग रहा होगा इस एरिया पे। ठीक है, और ये लेयर बाय लेयर बाय लेयर है। इसमें भी एक लेयर होगा, कोई भी लिक्विड के अंदर भी अगर तुम एक लेयर उठा लोगे तो उसका भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट एरिया होगा जो ऊपर और नीचे विस्कस ड्रैग एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो इट्स द एरियाज दैट आर एक्चुअली इन कांटेक्ट। अगर तुम वेलक्रो परपेंडिकुलर टू फ्लो वाला एरिया नहीं होगा? नहीं, नॉट परपेंडिकुलर टू फ्लो वाला एरिया। फ्लो तो इस तरफ है, फ्लो की डायरेक्शन ये है, the area is basically, you imagine that it's a sandwich of solids and liquids. तो सैंडविच में जहां चीज रखोगे तुम, चीज स्लाइस, वो एरिया की बात हो रही है, चीज स्लाइस का एरिया। जिस एरिया पे रबिंग हो रही है या स्लाइडिंग हो रही है, वो एरिया की बात हो रही है, ये वाला एरिया की बात हो रही है। ओके, वो भी सर यूनिट एरिया ले रहे हैं ना? हाँ, वो भी पर यूनिट एरिया है। ठीक है,
सबको समझ गए? अब दूसरा सिचुएशन लेते हैं। ये एक दूसरा सिचुएशन हो सकता है। तो अब क्या है कि जब हम डिस्कशन कर रहे हैं कि विस्कस लिक्विड है और सॉलिड्स उसके अंदर मूव कर रहा है सॉलिड और उसको विस्कोसिटी लग रही है, तो ये तो एक आर्टिफिशियल सिनेरियो है कि एक प्लेन पे प्लेन स्लाइड कर रहा है। इन रियलिटी व्हाट इज हैपनिंग इज दैट द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट यू आर स्टडीइंग हियर इज, or the kind of situations to which this analysis is more relevant practically speaking, is let's say कोई जो इनफैक्ट मैं अब एग्जांपल लेने वाला हूं कि कोई मान लो फॉर एग्जांपल एक ड्रिलिंग मशीन है, ठीक है, या कोई शॉकर है, गाड़ी का शॉकर है, सस्पेंशन है। तो उन सब केसेस में क्या होता है कि एक हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप टाइप रहेगा और उसके अंदर एक सॉलिड सिलेंड्रिकल पाइप होगा जो उससे थोड़ा छोटा होगा और वो उसके अंदर मूव करता होगा ऐसे करके। तो मे बी देयर इज अ ड्रिलिंग मशीन एंड देयर इज लाइक अ हॉलो सिलेंड्रिकल केसिंग inside which there is the solid thing, and that solid thing moves in and out of it, right? So to sort of drill something, or maybe you have car का या बाइक का शॉकर सस्पेंशन सिस्टम होता है जिसमें एक हॉलो पाइप होता है और एक सॉलिड पाइप होता है जो उससे थोड़ा सा छोटा होता है और फिर वो अंदर यूजुअली गैस होती है या कोई विस्कस लिक्विड होता है और ये उसके अंदर मूव करता है जब वेट आता है उसके ऊपर। तो एसेंशियली किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि लेट्स से एक मेरे पास सिलेंड्रिकल पाइप है जो हॉलो है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है वो भी, और उसके अंदर एक सॉलिड सिलेंडर है वो भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है जो उसके साथ कोएक्सियल है। ठीक है, अभी एग्जैजरेटेड ड्राइंग है, इतना छोटा नहीं होगा वो उसके रिलेटिव, प्रोबेबली ऑलमोस्ट उसके बराबर होगा, थोड़ा ही छोटा होगा उससे। और फिर क्या करना होता है, क्योंकि सॉलिड सॉलिड फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है और उससे बहुत हीट प्रोड्यूस होती है जो चीजों को डिस्टॉर्ट कर सकती है, शेप डिफॉर्म कर सकती है एक्सपेंशन के कारण, जनरल वेयर एंड टेयर बहुत प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे सारे सिचुएशंस में जिसमें जैसे कोई सिलेंड्रिकल शाफ्ट है जो किसी केसिंग के अंदर बहुत रैपिडिटी से मूव करने वाला है, तो हम उसको ग्रीज करते हैं, और ग्रीस जो है वो विस्कस लिक्विड है जिसका डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे। तो रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में ये सिलेंडर काफी बड़ी होती है, ऑलमोस्ट थोड़ी सी गैप होती है वहां, और वो थोड़ी सी गैप में तुमने ग्रीस लगा दिया होता है, करेक्ट। तो अब जब ये सिलेंडर इसके अंदर एक सर्टेन स्पीड से चलना स्टार्ट करता है, तो जो ग्रीस इसके साथ कांटेक्ट में होता है वो उसी स्पीड से जाता है, क्योंकि ये लॉजिक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सिलेंडर के किसी सॉलिड के सरफेस में जो विस्कस लिक्विड है वो उसके रिलेटिव रेस्ट पर रहेगा। तो जो ग्रीस इसके सरफेस पे चिपका हुआ है, राइट, पिस्टन बोल दो इसको, इसको बोल दो शाफ्ट है या पाइप है, और ये पिस्टन है। तो पिस्टन के आउटर सरफेस पे जो ग्रीस चिपका हुआ है वो पिस्टन के साथ ही जाएगा उसी स्पीड पे, लेकिन जो उससे बड़ा लेयर ऑफ सिलेंड्रिकल लेयर ऑफ ग्रीस है वो थोड़ा सा स्लो होगा, तो वो थोड़ा पीछे रह जाएगा। और ऐसे करते करते लेयर बाय लेयर फाइनली जो ग्रीस केसिंग के साथ कांटेक्ट में होगा, केसिंग इज दी हॉलो सिलेंडर, उसके इनर वॉल्स पे जो ग्रीस लगा होगा वो रेस्ट पे रहेगा। तो बेसिकली अंदर जो लेयर्स ऑफ ग्रीस है उनमें एक प्रोफाइल बन जाएगी उस तरफ जाते हुए। आर यू ऑल फॉलोइंग? यस सर। ठीक है, ये मान लो अंदर वाला जो सिलेंडर है ये v स्पीड से आ रहा है और बाहर वाला जो सिलेंडर है वो एट रेस्ट है, और दोनों का कुछ रेडियस ले लेते हैं। तो अंदर वाला जो सिलेंडर है वो R1 है और बाहर वाला जो सिलेंडर है वो R2 है। अब अगर तुम इसका साइडवेज ड्राइंग देखोगे तो ऐसा दिखेगा, मैं दिखा रहा हूं कि जैसे वो उसके रिलेटिव आगे चला गया। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बोथ सिलेंडर्स आर इनफाइनाइट, and in fact this is not a possibility that you will see something like this happen. Do you guys follow what I'm saying? Yes sir. What I'm showing is only some unit length which was initially aligned with for both cylinders, और फिर अब वो v के चलने से आगे आ गए। ऐसा नहीं कि यहाँ खाली जगह हो गई और ऐसा नहीं कि वो उसके बाहर आ गया है, क्योंकि ऊपर वाला सिलेंडर भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है और अंदर वाला सिलेंडर भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लेकिन the same region
जो कि इनिशियली सेम जगह पे थे, अब थोड़ा देर के बाद वो आगे आ गए। तो मैं कह जो रहा हूं बात वो ये है यहाँ पर कि इसके अंदर एक वेलोसिटी की प्रोफाइल बनेगी इस तरीके से कि जो लेयर जो है यहाँ पर होगी वो इससे थोड़ा स्लो चल रही होगी, जो लेयर यहाँ होगी वो इससे थोड़ा स्लो चल रही होगी, जो लेयर यहाँ होगी वो इससे थोड़ा स्लो चल रही होगी, जो लेयर यहाँ होगी वो इससे थोड़ा स्लो चल रही होगी, ऐसे करते करते और फिर ये लेयर एकदम रेस्ट पर होगी। और ऐसा ही इधर से भी बन गया होगा। मेक सेंस? ग्रीस के अंदर सर स्क्रीन बहुत ज्यादा छोटा हो गया है मुझे, और हाँ। आपका नेटवर्क बैंडविड्थ लो बता रहा है। एक सेकंड रुक जाओ। तो मैं बोल रहा हूँ फिलहाल के लिए, अभी कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट लेट मी से द थिंग्स आई हैव टू से एंड देन तब तक ये ठीक हो जाएगा होपफुली। इज दैट कि जो हमारा इनर सिलेंडर है, जो पिस्टन है, वो v स्पीड से जा रहा है। उसके अराउंड जो एक लेयर ऑफ ग्रीस है, जो खुद एक सिलेंड्रिकल शेल ऑफ ग्रीस है, जिसको हम अज्यूम करेंगे r1 रेडियस का ही है, ऑफ द रेडियस ऑफ द पिस्टन, उसका स्पीड भी v है क्योंकि वो पिस्टन के साथ जा रहा है, पिस्टन के रिलेटिव उसकी स्पीड 0 है। फिर उससे जो थोड़ा और बड़ा लेयर है, सिलेंड्रिकल लेयर, सिलेंड्रिकल शेल ऑफ ग्रीस, वो और स्लोअर जा रहा है। और अल्टीमेटली करते करते वो सिलेंड्रिकल शेल ऑफ ग्रीस जो r2 रेडियस का है, यानी कि आउटर शेल के रेडियस का है, वो उसका स्पीड 0 होना चाहिए। तो बेसिकली मेरे पास v का एक रेडियल फंक्शन है, v एज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन एक्सिस। एक जनरल r ले लिया जाए जो r1 से बड़ा है और r2 से छोटा है, तो उस r पे एक सर्टेन v है, और ये v एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये r1 पे इसकी वैल्यू v है और r2 पे इसकी वैल्यू 0 है। यहां तक क्लियर हो गया तुम लोगों को? Did you guys all follow up till this part? That we have a v as a function of r. ठीक है? अब मेन पॉइंट यहाँ पर ये है, why is this cylindrical geometry different from the planar geometry? Can any of you tell in what way will this be different? So the direction of the forces of the upper and lower layers would be in the same direction for a cylinder? No, they will not be. If you consider a cylindrical shell somewhere between the two, ग्रीस के अंदर कहीं पर तुम एक सिलेंड्रिकल शेल कंसिडर करते हो, तो उसपे उसके इनर लेयर से जो फ्रिक्शन लगेगा या विस्कोसिटी लगेगा वो आगे लगेगा, यानी इन द फ्लो डायरेक्शन। और जो उससे बड़ा लेयर है, जो उससे रेडियस में बड़ा शेल है, जो उसके बाहर बैठा है, वो पीछे रह जा रहा होगा, तो वो उसको पीछे ड्रैग कर रहा होगा। इमेजिन कि पूरे में ग्रीस भरा हुआ है और तुम बीच वाला चीज को पकड़ के निकाल रहे हो। Yes, sir. So of course it will have a tendency to get pulled back due to that viscosity. What will happen is that you will maintain that V. So this piston will come out, but it will take that grease out with it. And the grease will form kind of like a shape, which is sort of reflected in how the velocities are distributed, right? Yes, sir. तुम ग्लू निकाल रहे हो, तुम ग्लू निकाल रहे हो, ग्लू वो जो जिसमें वो स्टिक सा होता है, तो तुम ग्लू में डाल रहे हो, और ये ग्लू का ट्यूब का माउथ है, और ग्लू एक विस्कस लिक्विड है। तो जब तुम इसको पुल आउट कर रहे हो, तो ग्लू जो है इस पे भी चिपका रहेगा और उधर भी रहेगा, तो एक ऐसे करके टेंट सा बनेगा ग्लू का। So then if you consider any cylindrical shell of glue in it, then that shell is being pulled ahead up by the shell that is smaller than it.
बिकॉज अल्टीमेटली सबको कौन खींच रहा है? बीच का स्टिक बाहर खींच रहा है उससे बड़े वाले ग्लू को, उसका बड़ा वाला ग्लू उससे बड़े वाले, और कोई भी जो लेयर ऑफ ग्लू है, शेल ऑफ ग्लू है, उसके बाहर वाला लेयर पीछे रह जा रहा है, तो ये उसको खींच के ला रहा है। सब आना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन तुम क्योंकि स्टिक खींच रहे हो, तुम पिस्टन खींच रहे हो, तो तुम सबको रिलक्टेंटली खींच के बाहर ला रहे हो। तो कोई भी एक सर्टेन शेल ऑफ ग्रीस लिया जाएगा, तो उससे जो छोटा शेल ऑफ ग्रीस है वो उसको आगे खींच रहा होगा, और उससे जो बड़ा शेल ऑफ ग्रीस है उसको पीछे खींच रहा होगा। तो कोई डिफरेंस नहीं है उस सेंस में। फोर्सेस हमेशा, तुमसे जो फास्टर लेयर है वो हमेशा तुम्हें आगे खींच रहा होता है, और जो तुमसे स्लोअर लेयर है वो तुम्हें पीछे खींच रहा होता है, क्योंकि वो खुद पीछे रह जा रहा होता है। सो दैट मच इज स्टिल ट्रू हेयर। इन व्हाट? हाँ, करेक्ट सिद्धांत, तुम भी सही बोल रहे हो, और अर्नव तू भी सही बोल रहा है। बेसिकली पॉइंट ये है that unlike in the planar geometry, the area between the adjacent layers will depend on r here. अंदर की तरफ के जो शेल्स रहेंगे उनका जो एरिया इन कांटेक्ट रहेगा वो कम रहेगा, क्योंकि शेल्स का जो एरिया इन कांटेक्ट है वो उनका कर्व्ड सरफेस एरिया है, और वो रेडियस पे डिपेंड करता है। बट एज यू गो आउटवर्ड्स, the adjacent areas in contact will be bigger because they are part of, because they are the curved surface area of a cylinder of a bigger radius. Do you guys follow what I'm saying here? Planar में in fact अगर तुम एक planar single layer को consider करो, तो by virtue of being planar उसका top surface area और उसका bottom surface area identical है, right? लेकिन cylindrical अगर layer consider करो, तो उसका जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है वो उसके आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया से स्लाइटली छोटा है, राइट? एंड सो देयरफॉर area in contact is increasing as you go radially out. layers हर लेयर एक सिलेंड्रिकल शेल है, और वो बेसिकली अपने अंदर के कर्व्ड सरफेस एरिया पे भी उसको विस्कोसिटी लग रही है, और बाहर के कर्व्ड सरफेस एरिया पे भी उसको विस्कोसिटी लग रही है। लेकिन बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया से थोड़ा ज्यादा है। सिमिलरली उसके बड़े वाले लेयर के लिए भी ट्रू है कि उसका अंदर का एरिया जो इसका बाहर का एरिया है वो इक्वल टू अगले वाले लेयर का अंदर का एरिया है, और अगले वाले लेयर का बाहर का एरिया उससे भी बड़ा है। तो प्रोग्रेसिवली जो एरिया इन कांटेक्ट है जिसपे स्लाइडिंग चल रही है वो इंक्रीज हो रहा है एज यू गो रेडियली आउट। आर यू ऑल फॉलोइंग नाउ? एंड सिंस दैट एरिया इज अ फंक्शन ऑफ r, therefore dv by dr in this context will not be a constant, meaning to say this is not a straight line. Does it make sense to all of you or is it confusing? तो तुम लोग ट्राई करो इक्वेशन लिखना। एक r डिस्टेंस पे सिलेंड्रिकल सरफेस कंसिडर करो, और r डिस्टेंस एक आर्बिट्ररी r है। इट इज बिगर देन r1 बट स्मॉलर देन r2। ठीक है, तो आर्बिट्ररी r पे एक सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए वो इक्वेशन लिखो, f इक्वल्स टू ईटा a dv by dr। आप dv by dr लिखोगे, dz नहीं लिखोगे, it's r in all directions, and then see if you can integrate that. Force is a constant that will remain outside the integral, eta is a constant, and then you can find v as a function of r, और उसमें भी लिमिट्स लगाना पड़ेगा तुमको। तो वो सोचना पड़ेगा तुमको कि क्या तुम्हें 2r पे 2v पता है। These are called the boundary conditions of your problem. So by knowing the v at two different r's, you will be able to find the force, and then by resubstituting the force back, you can find v as a function of r. तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ट्राई करोगे इसको? Write the viscous force equation for a cylindrical surface of radius r, not a cylindrical shell of radius r thickness dr. That is not what I'm saying. You're simply writing the force for a surface, cylindrical surface of radius r. And of course, क्योंकि ऐसे सब कुछ इनफाइनाइट है, जब भी हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्री होती है तो उसको एनालाइज करने का तरीका होता है कि एक यूनिट लेंथ कट कर लो उसमें से। तो यू कैन इमेजिन कि इस पूरे सिस्टम में से पहले एक यूनिट लेंथ कट आउट करके बाहर निकाल लिया है, ये हो सकता है वो, और फिर उसके अंदर एनालिसिस चल रही है। यू कुड अज्यूम दैट दिस इज यूनिट लेंथ। तो जो तुम्हें मिलेगा सब कुछ वो भी पर यूनिट लेंथ ही होगा, क्योंकि वैसे तो टोटल में तो इनफाइनाइट फोर्स लगाना पड़ेगा। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर में से एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर को
अगेंस्ट ऑल ऑफ दैट विस्कोसिटी ड्रैग आउट करने के लिए इनफाइनाइट फोर्स ही लगेगा, बट पर यूनिट लेंथ फाइनाइट फोर्स लगेगा। तो वैसे ही सिस्टम इनफाइनाइटली लॉन्ग रहा होगा, बट हमने उसका एक फाइनाइट रीजन यूनिट लेंथ का कट आउट कर लिया है और उस पे एनालिसिस चल रही है। तुमको v एज अ फंक्शन ऑफ r फाइंड करना है, तुम लोग ट्राई करो, और किसी का आता है तो मुझे बताओ। पहले तो f ही फाइंड कर लो, फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ required to keep this cylinder moving at this speed. नहीं देवयानी, डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, उस इक्वेशन में कहीं मास वास है ही नहीं। इट्स ओनली अबाउट फोर्सेस, जस्ट राइट द फोर्स इक्वेशन। परिजात करेक्ट है। ईटा तेरा मिस हो गया। नहीं हर्षित, जो तुमने एरिया लिया है वो गलत लिया है। वो नहीं है एरिया जो तुम सोच रहे हो, एरिया है कॉन्टैक्ट में। एरिया जो होता है इस फॉर्मूला में, ईटा ए डीवी बाई डी आर में, वो जो ए होता है वो ए होता है जहां पे विस्कस फोर्स लग रहा है। मिराज करेक्ट है। हाँ, परिजात भी करेक्ट है। नहीं हर्षित, करेक्ट नहीं है। तो देख फिर से, जब तू इंटीग्रेट करेगा, तूने लिमिट्स नहीं डाले एक्चुअली, अदरवाइज तो ठीक ही है। इंटीग्रेट तुमने कर दिया विदाउट लिमिट्स। आर तो एक वेरिएबल है ना। नहीं चिन्मय, इंटीग्रेट गलत किया है। A56 चिन्मय। करेक्ट है इसने। वरुण सावंत भी करेक्ट है। चिन्मय इंटीग्रेट गलत किया है तुमने। रुक मैं लिखता हूँ तेरे को चैट पे।
हाँ हर्षित अभी करेक्ट है, अर्नव करेक्ट है, A50 से A50। ये ना कुछ तो गड़, अच्छा बी का एक्सप्रेशन तुम बता रहे हो क्या? प्रणव F फाइंड करना है, फोर्स, फोर्स फाइंड करना है by writing the force equation for a cylindrical surface of radius r, arbitrary r. R is bigger than capital R1 and smaller than capital R2. So it's somewhere between the two cylinders. एक cylindrical surface assume करना है और उसके लिए equation लिख के force find करनी है। ये थे जिसके लिए लिखा equation। नहीं सिद्धांत तेरा इंटीग्रल गलत है। तो मैं सॉल्व करूं या तुम लोग अभी कर रहे हो? Should I give you another minute or so?
हाँ देवयानी करेक्ट है. आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, so you guys can check. हाँ चिन्मय, क्वेश्चन देख ले. क्वेश्चन ये है, एक सॉलिड सिलेंड्रिकल शेल, एक हॉलो सिलेंड्रिकल शेल, एक सॉलिड सिलेंडर of radius capital R1 is sliding coaxially with velocity v inside a hollow cylinder of radius R2. The space between the two cylinders is filled with a viscous fluid of viscosity eta. तो उसके प्रोफाइल ऐसी कुछ बनेगी. लिक्विड का जो लेयर सॉलिड सिलेंडर के साथ कांटेक्ट में होगा उसके साथ जाएगा v से, जो हॉलो के साथ कांटेक्ट में होगा वो रेस्ट पे रहेगा. तो सिलेंड्रिकल शेल्स रहेंगे जो अलग अलग स्पीड से जा रहे होंगे. So what you have to consider is you have to consider a cylindrical surface of radius r, arbitrary r being bigger than r1 and smaller than r2. और वहां पे तुम्हें वो फोर्स का फॉर्मूला लिखना है, ये वाला. एरिया एडजस्ट करना है अप्रोप्रिएटली. फोर्स कांस्टेंट होता है, इंटीग्रल से बाहर रहेगा. ईटा कांस्टेंट होता है. एरिया लिखो आर के टर्म्स में, जो तुम्हें लग रहा है कि एरिया इन कांटेक्ट है. dv by dr लिखो और फिर इंटीग्रेट करो. v और r की लिमिट्स लगेंगी 2. So think about whether you know v in two different r's. You need two different for upper limit and lower limit. लिमिट्स को फिजिक्स में हम बाउंड्री कंडीशन कहते हैं, मैथ में उनको लिमिट्स कहते हैं, फिजिक्स में बाउंड्री कंडीशन कहते हैं. Basically the knowledge of two pieces of information. Those are the boundary conditions of the problem. So you can apply the boundary conditions on speed to get f, right? That is what you're supposed to do. And you have to analyze, keep in mind, you have to analyze over a unit length. वैसे तो अरेंजमेंट इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लेकिन हम उसका एक यूनिट लेंथ निकाल के उसकी एनालिसिस कर रहे हैं. नहीं मेरा याद नहीं रखना, ये एक बस सॉर्ट ऑफ प्रोटोटाइपिकल प्रॉब्लम है. बिना करेक्ट आंसर है. प्रांजलि को इंटीग्रेट गलत किया है. सिद्धांत गलत आंसर है, इंटीग्रेट गलत किया है. आई थिंक तूने इंटीग्रेट भी गलत किया और तूने एरिया का फॉर्मूला भी गलत किया है. मतलब व्हाट एक्सप्रेशन यू हैव टेकन फॉर एरिया.
चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ फिर। बेसिकली ठीक है, कर लो, 1 मिनट और ले लो, ट्राई कर लो, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। हाँ प्रांजलि, इंटीग्रल तो ठीक लग रहा है अभी। मैं सॉल्व करता हूँ, फिर वेरीफाई कर ले। B57 चिन्मय, ये किस चीज का आंसर है? फोर्स के लिए करेक्ट ही लग रहा है, लेकिन तेरा वी गलत जगह आ गया है। मिताली करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो ये करना है इसमें कि कंसिडर cylindrical surface of radius r and unit length. ठीक है, basically what you have to understand is there are two ways to do this. One is you could consider a cylindrical shell, right? और cylindrical shell का inner radius r होता और outer radius r plus dr होता, और उसके inner surface पे भी एक viscosity लग रहा होता जो उसे आगे खींच रहा होता, और उसके outer surface पे भी एक viscosity लग रहा होता जो उसे पीछे खींच रहा होता. And then we could write the net force or whatever and do it. What I'm doing here is not a cylindrical shell, but simply a cylindrical surface. So it only has a radius r. It doesn't have another radius r plus dr. And it is basically the surface of contact between one shell that must have been slightly smaller than r and one shell that is slightly bigger than r. Do you guys understand? So it must be the outer surface of a shell whose outer radius was r, and it would also be the inner surface of a shell whose inner radius was r. It is one particular surface of contact between two adjacent layers. You guys are following what I'm saying?
Yes, sir. तो हमने क्या किया है कि पूरा जो सिचुएशन है उसमें से हमने एक पर्टिकुलर सरफेस ले लिया है जो आर रेडियस का है, और ऑफ कोर्स यूनिट लेंथ ले लिया है उसका। इसको मैंने बाहर निकाला है, और इस पे जो फोर्स ऑफ विस्कस फोर्स लग रहा होगा वो होगा F eta. What is the area? So some of you might have made an error in writing the area correctly. I think definitely some of you have taken the area seen from the front, pi r square, जो इस सिलेंड्रिकल सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, बट वो करेक्ट नहीं है। जो विस्कोसिटी लग रही है वो कर्व्ड सरफेस एरिया पे लग रही है, क्योंकि it's like this. It is like if I fold all of these pages into a cylindrical form and then I try to drag one paper out of the other paper, right? ऐसे करके तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो कहाँ लगेगा? वो यहाँ थोड़ी लग रहा है, वो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे नहीं लग रहा है। वो बेसिकली पेज का जो एक्चुअल एरिया है जहाँ पे स्लाइडिंग हो रही है दो लेयर्स के बीच में, उधर में वो फ्रिक्शन लग रही है। तो अगर तुम पेज को खोल दोगे, राइट, तो लेयर्स के बीच में जो ये एरियाज हैं, यहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे विस्कोसिटी लग रही है। सो इट्स रियली द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, एंड दैट इज हाउ लेयर्स आर स्लाइडिंग रिलेटिव टू लेयर्स। ऐसे 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 यहाँ पे विस्कोसिटी लग रही है, एंड सो ऑन, राइट। तो जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई r1। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड 2 पाई r1 क्यों है। 2 पाई r उसकी सरकमफेरेंस है और 1 उसकी लेंथ है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r1 है और dv by dr है। And again, like I have told you before, every time you form a differential equation, you must check whether the derivative quantity is a positive or a negative number. In our problem, v is decreasing with r. It is largest at smaller values of r and 0 at the largest value of r. So since dv by dr is actually negative, we must also put a negative sign from our side. तो माइनस साइन भी चिपका दो एक। तो अब तुम्हारे पास आ गया f by 2 pi eta with a minus sign, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं। dr by r इधर आ जाएगा और ये dv हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, f बाहर रहेगा क्योंकि f हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब मेरे को दो लिमिट्स लगाने हैं, तो क्या मेरे को दो जगह पे स्पीड पता है? हाँ करेक्ट, मुझे पता है v is v at r equals to r1 and v is 0 at r equals to r2। हमें r निकालना है ना, तो आपको r1 की जगह r नहीं लेना होगा लोअर लिमिट वहां पे। नहीं, हाँ तू सही बोल रहा है, पहले फोर्स निकालना पड़ेगा क्योंकि फोर्स अभी सिर्फ सिंबल f है, पता नहीं उसकी वैल्यू। तो पहले हम क्या करेंगे, इफ यू रिमेम्बर हीट ट्रांसफर हम कंडक्शन पढ़ते थे तो उसमें भी यही करते थे हम। हीट करंट कांस्टेंट होता था, ये इनफैक्ट उसी फॉर्म का इक्वेशन है। I इक्वल्स टू कंडक्टिविटी एरिया एंड सम ग्रेडियंट ऑफ समथिंग। उधर टेम्परेचर का ग्रेडियंट था वो dt by dx। तो उधर भी जब हीट करंट निकालना होता था तो पहले मेरे को रॉड के दोनों एंड के बाउंड्री कंडीशंस लगाने पड़ते थे। तो इधर भी मेरे को दोनों बाउंड्री कंडीशंस लगाने पड़ रहे हैं, उससे f मिलेगा, फिर f वापस इधर डाल दूंगा और नेक्स्ट टाइम केवल एक नोन बाउंड्री कंडीशन और एक आर्बिट्ररी v at r, तब मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ r मिलेगा। r लेके करेंगे तो आंसर आ जाएगा ना तब भी। नहीं, f कैसे हटेगा तेरा, f के टर्म्स में आएगा ना अभी अगर तू r डाल देगा। राइट, ओके, गॉट इट सर। तो पहले f एलिमिनेट कर रहा हूं मैं, f में फाइंड कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ द नोन कांस्टेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम। गॉट इट सर। ठीक है, दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड f। तो मेरा जो इंटीग्रल बनेगा वो बनेगा -f by 2 pi eta, ये हो गया ln r2 by r1, और यहाँ पे आ गया 0 माइनस b। तो देयरफॉर f की वैल्यू मिल गई 2 pi eta v by ln r2 by r1, दैट इज योर फोर्स पर यूनिट लेंथ। इतना फोर्स लगाना पड़ेगा पर यूनिट लेंथ to keep this inner cylinder moving at speed v relative to the outer cylinder.
ठीक है, और अब अगर तुम इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मेरे पास f की जगह आ जाएगा 2 पाई ईटा v बाय लॉन r2 बाय r1 बाय 2 पाई ईटा माइनस साइन, और यहां अब मैं लिखूंगा r1 पे v और आर्बिट्ररी r पे आर्बिट्ररी v। समझ गए तुम लोग? तो 2 पाई ईटा उड़ा दो, यहां पे मेरे पास बचा माइनस v बाय लॉन r2 बाय r1, यहां पे बचा लॉन r बाय r1, और यहां पे बचा vr माइनस v। तो देयरफॉर v एज अ फंक्शन ऑफ r मिल गया v 1 माइनस ln of r by r1 over ln of r2 by r1. This is the velocity profile, v as a function of r. तुम इसका प्लॉट करके देख सकते हो गूगल पे। तो जो शेप उस फंक्शन का आएगा v as a function of r का, उसी शेप में ये लेयर्स यहां से बाहर आ रहे होंगे। देखो ये v एक्सिस है, ये r एक्सिस है। You have to understand that this is the v axis and this is the r axis. So v as a function of r is simply this plot, whatever this function is. Yani just shape of the grease, right? It will have some kind of a, if you look at this particular drawing, this function, and if you plot it, it will be like कि अंदर वाला सिलेंडर ऐसे है, बाहर वाला सिलेंडर ऐसे है, और जो ग्रीज है उसने वो लॉन वाला शेप ले रखा है। ये जो प्लॉट का फंक्शन का शेप होगा वही ग्रीज का शेप होगा, ये ऐसे। This is itself v as a function of r. Make sense? क्योंकि this is the v axis and this is the r axis. So what you're finding here is the shape in which that grease will come out, or the shape in which any viscous liquid comes out in this kind of a situation. So if you have like a hollow pipe of glue and you put a solid rod of something to take the glue out, then as you pull that out, the kind of a function that forms of the glue is this function. Do you guys understand? और ये सोल्यूशन आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि एक आर्बिट्ररी रेडियस r का एक सरफेस लेके वहां पे फोर्स का फॉर्मूला लिखना है, करेक्टली एरिया डालना है जिसपे विस्कोसिटी लग रही है, और फिर दोनों नॉन बाउंड्री कंडीशंस डालने से फोर्स मिलेगा। दोनों नॉन बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं? v at r1 is v and v at r2 is 0. Those are the boundary conditions. f मिल जाता है इस तरीके से, दिस इज f पर यूनिट लेंथ। हर यूनिट लेंथ पे इतना फोर्स लगाना पड़ेगा अगर इसको तुम्हें चलाना है इसके अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि पूरे टाइम तुम्हें विस्कस ड्रैग आ रहा होगा पीछे। और फिर वापस f को रीसब कर दोगे यहाँ पर, और फिर एक नॉन बाउंड्री कंडीशन और एक आर्बिट्ररी कंडीशन लगाने से v एज अ फंक्शन ऑफ r मिलेगा। ये रहा। इसको तुम प्लॉट करके देख लो डेस्मॉस में या गूगल पे, तो तुम्हें बेसिकली शेप ऑफ द ग्रीज मिल जाएगा। जैसा भी वो फंक्शन दिखता है वैसे ही दिखता होगा। ठीक है, ऑलराइट। नहीं प्रेरित, याद कुछ नहीं करना है, बट यू हैव टू लर्न दिस sort of process of finding this. What you have to do is go to an arbitrary distance, make an arbitrary surface, and write the f equals to eta a dv by dr equation there. Then on integrating, you can find both force and velocity as a function of r. अब इसका एक नेक्स्ट वर्जन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, which is when you have no cylinder inside. So you can imagine कि जब बहुत बड़ा सिलेंडर होगा
तो इजीली पुल आउट कर पाते होंगे क्योंकि ग्रीस कम होगा, जितना छोटा होता जाएगा उतना ग्रीस कम आएगा साथ साथ, तो उतना ज्यादा ही और शार्पली कर्व बनेगा। और अगर हम इसको R1 को 0 ही डाल दें एक तरीके से, तो ये अंदर वाला सिलेंडर गायब हो गया, तो आप ग्रीस को कैसे खींचेंगे बाहर? तो आप प्रेशर डिफरेंस लगाना पड़ेगा, बेसिकली क्रॉस सेक्शन पे पुशिंग फोर्स लगानी पड़ेगी टू गेट द विस्कस लिक्विड आउट. So then that will be an analysis of situations like toothpaste coming out of a tube or any other such similar situation. ठीक है, all right? Okay. Any questions? हाँ, Chinmay, in all cylindrical functions, systems, we will see this function. So this logarithmic of radius by radius type thing is a common feature in cylindrical geometries. और तुम इसको पीछे तक फिगर आउट कर सकते हो कि क्यों आता है ये इसलिए आता है क्योंकि सिलेंड्रिकल सरफेस लीनियर इन आर होती है 2 पाई आर। तो फिर ये डी आर जो है जब उस तरफ चला जाता है तो आर उसके नीचे आ जाता है, बस डी आर के नीचे जैसे ही आ रहा है तो लॉन बनने वाला है। तो इट्स अ कॉमन फीचर ऑफ सिलेंड्रिकल सिस्टम्स वेयर द सरफेस एरिया इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब भी कोई सिलेंड्रिकल सरफेस पे कोई चीज लग रही होती है सिलेंड्रिकल के कर्व्ड सरफेस पे, तो यूजुअली लॉगरिथमिक फंक्शंस इमर्ज करते हैं उधर। ठीक है, ऑलराइट, डिजाइन देख ले प्लॉट वाला। हर्षित तू क्या बोल रहा है? कैन यू टेल मी हाउ चेंज इन के इज आल्सो फ्रेम डिपेंडेंट? चेंज इन के ई, हाँ समझ गया, अनरिलेटेड। बाय द वे क्लास हो गई है खत्म, सो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो यू कैन लीव। Sir, will you be taking any doubt class this week? I will, because हमारा फ्लूइड्स का बच रहा है डिस्कशन। Yes, sir. बट आज क्या है, वेडनेसडे है ना, so I will let you guys know on the group, but I will probably keep it either maybe Friday afternoon or Saturday afternoon, one of those 2 days. Yes, sir. Thank you. Because we have completed fluids book. ठीक है, तो रख लेंगे वो डिस्कशन, रख लेंगे one of those 2 days. I will let you know on the group, डिसाइड कर लेंगे कॉमन टाइम, तो फिर कर लेंगे डिस्कस। नहीं अर्नव, संडे को मोस्टली नहीं रखूंगा मैं। हर्षित तू क्या पूछ रहा था कि कैन यू टेल मी हाउ चेंज इन के इज आल्सो फ्रेम डिपेंडेंट? तो वो तुम कर सकते हो, बट अगर तुम ऐसे ही बोल दो कि सिंपली ऐसे बोल दो, देखो वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, वो फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट होता है। Yes, sir. राइट, और अगर तुम मान लो कि किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं हो, ठीक है, तो दूसरे इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हो, मतलब एक रेस्ट फ्रेम है जिसमें एक फोर्स लग रही है और एक डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और एक दूसरा फ्रेम है जो उसके रिलेटिव मूव कर रहा है मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो फोर्स जो तुम देख रहे हो वो तो सेम ही दिखेगी क्योंकि दूसरे इनर्शियल फ्रेम से भी तुम्हें फोर्स तो सेम ही दिखेगी, फोर्स इज अ फ्रेम इनवेरिएंट। अगर तुम दूसरे नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखते तो फिर सूडो फोर्स भी आ जाते, और बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑल फोर्सेस के वर्क डन से चेंज होता है। लेकिन अगर हम दूसरे फ्रेम में रहे जो खुद इनर्शियल है, बस वो सिंपली वेलोसिटी से जा रहा है, तो जो फोर्स हम देख रहे थे रेस्ट फ्रेम में वही हम मूविंग फ्रेम में भी देखेंगे, राइट? हाँ सर। And then as to displacement of the point, वो तुम देखोगे as being different, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो फ्रेम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होगी। हाँ सर। राइट, रेस्ट फ्रेम में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ और तुम्हारे फ्रेम में कुछ और डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि तुम मूविंग फ्रेम से देखोगे डिस्प्लेसमेंट को। तो देयरफॉर तुम कंक्लूड करोगे कि जो वर्क किया है उस फोर्स ने वो डिफरेंट है, फोर्स सेम है लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फ्रेम डिपेंडेंट है तो वर्क डन बाय द फोर्स आल्सो यू विल से इन योर फ्रेम इट्स अ डिफरेंट वैल्यू, एंड since work done is equal to change in kinetic energy, work done by all forces,
and in this case we are assuming this is the only force, and that's why we are in an inertial frame, so that there are no pseudo forces also arising. So therefore, by work energy theorem, since work done equals change in kinetic energy, and since you just saw that work done is frame dependent, therefore change in kinetic energy is also frame dependent. Got it, sir. Thank you, sir. ठीक है?